Nude mice are not resistant to xenograft due to absence of T cell. Xenograft और ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्रॉम डोनर ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज़ का कह रहे हैं जीनोग्राफ्ट, और टी सेल नहीं होता, इसी वजह से रेजिस्टेंट नहीं होते. न्यूड माइस लैक बॉडी हेयर, हेंस द नेम. दे लैक थाइमस. They cannot generate mature T lymphocyte. Absence of T lymphocyte make them unable to mount adaptive immune responses requiring T helper cell cytotoxic T cell. Absence of functioning T cell also prevents the rejection of allograft and xenograft. Which of the following is Burkholderia cepacia resistant to? C4 titan. Burkholderia cepacia is resistant to aminoglycoside, polymyxin, first and second generation cephalosporin, and carboxypenicillins. Burkholderia cepacia can cause severe necrotizing pneumonia in patients with chronic granulomatous disease. It can lead to fatal septicemia in patients with cystic fibrosis. ठीक है. सी फॉर सिपेसिया, सी फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड रेजिस्टेंट किसको होते हैं? सिफेलोस्पोरिन, C4 सी. ओके. एंटीमाइक्रोबियल दैट आर इफेक्टिव अगेंस्ट. इफेक्टिव किसके अगेंस्ट है? मीरोपेनम, सेफ्टाजिडियम, पिप्रासिलिन, टिमोसिलिन एंड ट्राइमिथोप्रिमेन सल्फमिथोक्साजोल. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन कॉज क्रोम्ब्रॉयड फिश पॉइजनिंग? आंसर इज Pseudomonas aeruginosa. Scromboid fish poisoning is associated with Pseudomonas aeruginosa. Consumption of both scromboid, that is mackerel-like fish, and non-scromboidal fish that has not been refrigerated properly. The musculature of these dark or red fleshed skin fish undergoes decomposition by Morganella morgani, Escherichia coli, Proteus species, Klebsiella species, and Pseudomonas aeruginosa, with consequent decarboxylation of amino acid L-histidine to form histamine. Second compound is thought to play a causative role in its intoxication because large doses of oral histamine do not produce the affliction. The toxin of toxins involved are heat stable and not destroyed by cooking or freezing. Symptoms develop within 15 to 90 minutes of ingestion. Most cases are mild: tingling of lips, mouth, mild abdominal discomfort, nausea. Most severe and more commonly described presentation include flushing, conjunctival hyperemia, pruritus, urticaria, angioedema. Without treatment, symptoms generally resolve within 8 to 12 hours. स्क्रॉम्बॉइड फिश और नॉन स्क्रॉम्बॉइड फिश जो अच्छे से रेफ्रिजरेट नहीं की, उसमें क्या हुआ? उसकी डिकम्पोजिशन होगी मॉर्गेनेला मॉर्गेनी, एस्चेरिचिया कोलाई, प्रोटियस स्पीशीज, क्लेप्शेला और सूडोमोना एरोजिनोसा, जो इसका आंसर था. और उसके बाद कार्बोक्सिलेशन होगी, जो एल हिस्टिडीन था उससे हिस्टामिन बन गया. या फिर एक और थियोरी है जिसमें माना जाता है कि कोई और टॉक्सिन है जो हीट स्टेबल है और कुकिंग या फ्रीजिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होता. ठीक है. सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं 15 से 90 मिनट में. टिंगलिंग ऑफ सेंसेशन, एंजियोडीमा सब होने लगता है, और विदाउट ट्रीटमेंट ही रिजॉल्व हो जाता है 8 से 12 घंटे में. रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट में 1 से 4 महीने के बीच में कौन सी इन्फेक्शन होती है? साइटोमेगेलो वायरस की. मोस्ट कॉमन प्रेजेंट CMV प्रेजेंटेशन इज फीवर, ल्यूकोपीनिया, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली, माइल्जिया, आर्थ्रेल्जिया. मसल पेन, हाय मेरे गोड्डों में दर्द, हाय मेरे पसलियों में दर्द हो रही है, हिपैटोस्प्लिनोमेगेली हो गई है. बुखार हो रहा है, ल्यूकोपीनिया आ गया CBC में. ठीक है. JC वायरस, BK वायरस, एप्स्टीन बार वायरस have the propensity to cause infection during this period, but in lesser frequency. That's CMV answer. Sabin-Feldman test is used to diagnose toxoplasmosis. It is based upon principle of anti-toxoplasma antibody. Patient serum inhibits the staining of trophozoites by alkaline methylene blue dye. Toxoplasma, trophozoites and complements are added to patient serum, which is then incubated for an hour at 37 degrees Celsius. After incubation, methylene blue dye is added. If anti-toxoplasma antibodies are present in the serum, these are activated by complement and the parasite membrane is lysed. Thus, trophozoites are not stained. अच्छा, इसमें क्या किया? इसमें ना पेशेंट का सीरम लिया और उसमें टॉक्सोप्लाज्मा के ट्रोफोसाइट्स जो होते हैं ना वो डाल दिए. उसके बाद मिथाइलिन ब्लू डाई डाल दी.
ठीक है। अब इसमें वो एंटीबॉडी और एंटीजन साथ लग जाएंगे, ठीक है, और जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो स्टेन नहीं होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा टेस्ट है ये? सेबिन फील्डमैन डाई टेस्ट फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन किसको कहते हैं? HBsAg। HBsAg ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलिया एंटीजन बिकॉज इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम सीरम ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन पर्सन. Sera from hepatitis B, when observed under electron microscope, show three types of particles. A spherical particle 22 नैनोमीटर का मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है स्फेरिकल, ठीक है, ओनली HBsAg. फिलामेंट दूसरा है फिलामेंटस या ट्यूबुलर पार्टिकल, ये भी 22 nm का है, कंटेन्स ओनली HBsAg. तीसरा है डबल वॉल्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, 42 नैनोमीटर का है डायमीटर, is complete hepatitis B virus. It was described by Dane and this is called Dane particle. डेन पार्टिकल का डायमीटर 42, ये भी इंपॉर्टेंट होता है वैसे. HBsAg सबसे आउटर, फिर अंदर HBsAg तो वही होता है जो वैक्सीन से भी मिलता है, ये भी क्वेश्चन था. और लाइफ लॉन्ग जो पॉजिटिव रहता है वो HBcAg होता है आफ्टर इन्फेक्शन. HBeAg इन्फेक्टिव वाला होता है, ठीक है. बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन किससे होती है जी? बैक्टीरियोफाज से, ठीक है. कॉन्जुगेशन किससे होती है? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ DNA बाय सेक्स फिलाई. ट्रांसफॉर्मेशन किससे होती है? अपटेक ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वायरमेंट विच इज रिलीज बाय द अदर बैक्टीरिया. जब मर जाता है तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल सेलुलाइटिस इन पेशेंट विद डायबिटिक कीटो एसिडोसिस. पेशेंट को डायबिटीज़ है, कीटो एसिडोसिस हो रहा है, तो जो आँख में ऑर्बिटल में सेलुलाइटिस हो रही है, आँख में जो सेलुलाइटिस हो रही है किसकी वजह से हो रही है? फंगल जो है राइजोपस की वजह से हो रही है आँख में. डायबिटिक पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में टर्न फेटल इन दिस पेशेंट एज इट इज एंजियो इन्वेजिव फंगस एंड कैन लीड टू सेप्टिसीमिया एंड थ्रोम्बोसिस. लो जी, आँख की इन्फेक्शन डायबिटीज़ के पेशेंट में बंदा मर जाएगा सेप्टिसीमिया से. एडल्ट फॉर्म ऑफ इकाइनोकोकस किस में दिखती है? डॉग्स में, ठीक है. डॉग्स जो हैं वो डेफिनेटिव होस्ट हैं. लार्वल स्टेज इज पास्ड इन इंटरमीडिएट होस्ट. जो लार्वा वाली स्टेज है वो इंटरमीडिएट होस्ट की होती है. इंटरमीडिएट होस्ट में किस में होती है? शीप, कैटल, गोट, स्वाइन, हॉर्स, कैमल, मैन. मैन एक्सीडेंटल इमीडिएट होस्ट है, डेड एंड है, मैन से कहीं नहीं जाना इन्हें. कुत्ते च होंदा काइनोकोकस. Humans can become accidental host, second intermediate host or parenteric host for Spirometra. These are cystodes belonging to dry field condition caused as paragnosis. ठीक है जी. ਇਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ CDC 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ. ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ੀਪ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਸਕੋਲੈਕਸ, प्रोटोस्कोलैक्स, कुत्ता डेफिनेट हो, शीप इंटरमीडिएट. लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ग्रो इन एसिडिक pH? ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही लैक्टोबैसिलस. इो ग्रो होना है, यह मिलता ਤੁਹਾਡੀ ਵਜਾइना 'ਚ मिल जाएगा. ਵਜਾइना ਦੀ pH तो एल्कलीन होंदी है, तो लैक्टोबैसिलस एल्कलीन होंदी है, एसिडिक ही तो होंदी है. हाय हाय, कुछ नहीं हो सकता. वेक्टर फॉर कंडीशन इमेज, ओ ये दोनों वन बॉडीज़ दी हुई हैं लिशमेनिया दोनों वन की. इसकी वेक्टर पूछी सैंड फ्लाई. ये लिशमेनिया वाला क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, हमने रिकॉर्ड किया है, ठीक है. लिशमेनिया हमें पता होता है. इसमें क्या बुखार हो जाता है पेशेंट को, काइनेटोप्लास्ट दिखते हैं ना, लिशमेनिया वो क्वेश्चन था पहले. TB टेस्ट डन ओनली ऑन होल बॉडी, होल ब्लड सैंपल. होल ब्लड सैंपल में कौन सा होता है? इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे. TB टेस्ट डन ऑन होल blood sample is interferon gamma release assay. It has been used for diagnosis of latent tuberculosis in patients with HIV who frequently have negative Montauk's test. Interferon gamma release assay include quantiferon TB gold or T-spot TB. Quantiferon TB gold quantitates the amount of interferon gamma produced by CD4 T cell in response to antigen from Mycobacterium tuberculosis. T-spot TB test determine total number of individual effector T cell expressing interferon gamma. Quantiferon TB gold plus is an improved version of quantiferon TB gold test. Quantiferon TB gold
detects only TB specific CD4 responsive. However, Quantiferon TB Gold Plus is improved version of Quantiferon TB Gold test. Quantiferon TB Gold detect only TB specific CD4 responsive. However, Gold Plus CD4 भी होता है, CD8 भी होता है. ठीक है. TrueNat TB test is new molecular test that can diagnose TB in 1 hour as well as test for rifampicin resistant. The test uses sputum sample taken from patient. ठीक है. जीन एक्सपर्ट मॉलिकुलर मेथड है दैट कैनॉट यूज ब्लड एज सैम्पल. ठीक है. तो जो ट्रू नैट होता है, टीबी नैट होता है, उसमें क्या यूज़ होता है, स्पूटम सैंपल. जीन एक्सपर्ट मॉलिकुलर मेथड है, उसमें भी खून नहीं यूज़ होएगा. खून किस में यूज़ होगा, इंटरफेरॉन गामा एसिड, जिसमें 2 टेस्ट हैं, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड जिसका प्लस आ गया, जिसमें CD4 और CD8 दोनों टेस्ट होते हैं. जो नॉर्मल था क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड, उसमें सिर्फ CD4 टेस्ट हो रहा था. टीबी स्पॉट है जो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टेड टी सेल्स एक्सप्रेसिंग अगेंस्ट इंटरफेरॉन गामा असेस करता है जी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में. नेक्स्ट आ जाओ जी, मल्टीपल एब्सेसिस विद डिस्चार्जिंग साइनस डेमोन्स्ट्रेटिंग सल्फर ग्रैन्यूल्स इन पस. ये हमको पता है, सल्फर ग्रैन्यूल्स एक्टिनोमाइसिटीज. मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस chronic granulomatous infection characterized by indurating swelling, suppuration, discharge. Sulfur most common cause actinomyces israeli. Various clinical form of actinomyces include cervicofacial, thoracic, abdominal, pelvic actinomyces. Among them, actinomycosis most commonly occur as oral cervicofacial form presenting as soft tissue swelling, abscess, mass lesion involving angle of jaw. नेक्स्ट आ जाओ, क्यूटेनिया लार्वा माइग्रेंस इज कॉज बाय विच. क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस, स्किन के नीचे जड़ी लार्वा है माइग्रेट होती रहती, कौन होती, इनकाइलोस्कोमा ब्राजीलेंसिस. ठीक है. क्यूटेनिया माइग्रेन और ग्राउंड इच और क्रीपिंग एरप्शन कॉज बाय नीमाटोड लार्वा दैट इन्फेक्ट बाय स्किन पेनिट्रेशन. मोस्ट कॉमन कॉज इज नॉन ह्यूमन स्पीशीज ऑफ हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा ब्राजीलेंसे एंड एनसाइक्लोस्टोमा कैनिनम. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन क्यूटेनिया लार्वा माइग्रेंस एंड विसरा लार्वा माइग्रेंस. जो क्यूटेनिया लार्वा माइग्रेंस है वो स्किन में है, मोस्टली बाय नॉन ह्यूमन निमाटोड्स, पेनिट्रेशन बाय स्किन. इओसिनोफिलिया माइल्ड होता है, सीरो डायग्नोसिस कोई नॉट डेवलप्ड, ट्रीटमेंट है थाइबेंडाजोल. जो विसरल लार्वा माइग्रेंस है वो कहाँ पे होता है, वो लंग, लिवर, आइज में होता है. मोस्ट कॉमनली बाय नॉन ह्यूमन निमाटोड्स, मोस्टली बाय डॉग्स एंड कैट. इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एग्स, परसिस्टेंट हाई इओसिनोफिलिया हो जाता है. सीरो डायग्नोसिस वेल डेवलप्ड, ट्रीटमेंट है ट्राई इथाइल कार्बामाजिपिन एंड प्रेडनिसोलोन. Hypersensitivity reaction involved in hyperacute rejection of renal transplant type 2. ठीक है. ग्राफ्ट रिजेक्शन कैसा होता है, हाइपर एक्यूट होता है, एक्यूट होता है, क्रॉनिक होता है. हाइपर एक्यूट हुआ कुछ ही मिनट, मतलब ट्रांसप्लांट करते ही साथ ही कुछ ही मिनट से कुछ ही घंटे, 3-4 घंटे के अंदर हो गया प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ की वजह से. टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी. एक्यूट होता है कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने तक, 2-3 महीने तक, या 1-2 हफ्ते से लेके तो 3 मिनट में आ गया, ऐसे हो गया. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल मेडिएटेड है, मतलब वो डिलेड है. टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी. और क्रॉनिक जो मंथ्स टू ईयर, 4-5 महीने, 2-3 साल, वो भी डिलेड है. टाइप 4 क्रॉनिक DTH मेडिएटेड एंड AB मेडिएटेड. ठीक है. कोई फ़ोटो बनी हुई है इसमें, मेरे को सब पढ़नी पड़ेगी बाद में देखने. ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग यूरिएस, ये हमने गलत कर दिया था. इसका आंसर है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. नींद में भी कोई उठा के पूछे यूरियस तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. अच्छा, अब इसका एक निमोनिक भी है, पंच. जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं यूरियस, उसका है पंच, यूरियस पंच. P से प्रोटियस, U से यूरिया प्लाज्मा यूरिलिटिकम, नोकार्डिया. C से क्रिप्टोकोकस, कॉर्निबैक्टीरियम यूरिलिटिकम. और H से H पाइलोरी. माइकोप्लाज्मा इज इनहेरिटेडली रेजिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज. बीटा लैक्टम एंटीबॉडी, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होती, बीटा लैक्टम एंटीबॉडी का काम करेगी. पैस्चराइजेशन क्या होती है, 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए. हमने फिर गलत कर दिया क्योंकि हमने 72 डिग्री कर दिया. 72 डिग्री 30 मिनट के लिए नहीं होता, 72 डिग्री 15 से 20 सेकंड के लिए होता है. फ्लैश प्रोसेस, मतलब 72 डिग्री ऐसे निकल के गया तो दूध
ठीक वो पैस्चराइज हो गया। 63 डिग्री आधा घंटा जो हमारे घर पे होता है। ठीक है। फॉर नॉन स्पोरिंग पैथोजेन्स आर किल्ड एक्सेप्ट कॉक्सेला ब्रूनेटी विच में सर्वाइव इन होल्डर मेथड। होल्डर मेथड मतलब यही 63 डिग्री फॉर 30 मिनट्स वाला, इसमें कॉक्सेला ब्रूनेटी जिंदा रह जाएगा। चलो हो गए जी ये आपके नीट कौन से वाले, नीट माइक्रोबायोलॉजी 2018 के क्वेश्चन हैं।